Hey guys, hello everyone, and welcome back to my channel Wisdom Learning. I am Aditi Sharma, and today we are going to start our new topic that we have get a glimpse of it also in our previous video, that is geometry for class 10th board exams, CBSE class 10th board exams. And geometry, we are having our part 1 as triangles and its properties. तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो इससे पहले हम एक ग्लिम्स लेना चाहते हैं लाइंस एंड एंगल्स का। तो पहले आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके स्कूल में कौन कौन से चैप्टर्स अभी चल रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर और आप कौन सी क्लास में हो। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट with triangle and its properties. Before triangle and its properties, let me get a quick review of class 9th mathematics, lines and angles. So let's start. Lines and angles. So what is a line? If I ask you, आप सब मेरे को बताओ कि line क्या होता है? This is how a line looks like. Or let me make it a bit more clear. This is how a line looks like. What is a line? Line is basically a 1D figure. A 1D figure. By the way, guys, I will provide you this PDF of this lecture at the end of the video in the description box, so don't worry. Yes. So what is a line? It is a 1D figure which is extended in opposite directions. Extended in opposite directions. दोनों तरफ से ये कहीं इसका एंड पॉइंट नहीं होता है, ये दोनों तरफ से एक्सटेंडेड होती है, इसकी कोई एंडिंग नहीं होती है। नो एंड्स। और टू पॉइंट्स जो होते हैं लाइज ऑन द सेम प्लेन, same line, and they are collinear points. What are collinear points? Collinear points वो points होते हैं जो same line पे lie करते हैं, same plane पे lie करते हैं। collinear lines वो lines होती हैं जो same plane पे lie करती हैं। तो no ends and ये जो दोनों points हैं, जितने भी points इस line पे हैं और ये जो दोनों ending points हैं यहाँ पे, maybe it doesn't have an ending point, इसके दोनों points lie in the collinear manner and it never ends. वैसे तो हमने क्लास 5th में पढ़ा है, लेकिन एक क्विक रिकैप इसका ले लेते हैं। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होती है? डिफाइंड, इसके डिफाइंड एंड पॉइंट्स होते हैं, बस ये डिफरेंस है। डिफाइंड एंड पॉइंट्स। रे, इट हैज वन एंड पॉइंट on one side and it extends infinitely on other side. नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ
लाइंस। कितनी टाइप की लाइंस होती है हमारे पास में? नंबर वन, हॉरिजॉन्टल लाइंस। नंबर टू, वर्टिकल लाइंस। Guys, I'm sorry. Please maintain with my handwriting. My handwriting is not that good. I will try to clear each and every concept. I'm like starting with the basics. Number three, parallel lines, and number four, perpendicular lines. Horizontal lines किस तरीके की होती है? ऐसी। Vertical, parallel, and perpendicular lines. Perpendicular lines 90 डिग्री पे मीट करती हैं. Parallel lines never meet. So this is the case. Now next, we will learn about more lines. Next is सर्कल में हमने देखा होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में सर्कल पढ़ा है तो उसके अंदर लाइंस होती हैं. मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ. दिस इज द सर्कल. अब सर्कल से अगर एक लाइन जा रही है इस तरीके से, सो दिस इज टेंजेंट. और अगर इसके अंदर एक लाइन जा रही है, दे आर सीकेंट. दिस वी विल लर्न इन सर्कल लेटर ऑन. और नेक्स्ट पार्ट, एंगल्स. कितने तरह के एंगल्स होते हैं हमारे पास में? व्हाट इज एन एंगल? फर्स्ट ऑफ ऑल, एंगल इज यूनियन of two non-collinear, means they don't lie on the same line, non-collinear rays with a common initial point. Angles are of various type. In any triangle there are two type of angles: internal angle, external angle. Let's say I draw a triangle over here, A B C. If I extend C, then this one is interior angle and this angle is the exterior angle. What are congruent angles? Now we are going into types of angles. What are congruent angles? I will abbreviate angles as this. So if two angles can be superimposed on each other, कोई भी दो एंगल गाइस जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर जाएं, जो बराबर हो एक दूसरे के, वो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होते हैं.
Next, we have different kind of angles according to the degree of their degree. Like first of all, we will have a right angle. डिग्री के हिसाब से एंगल्स की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी है हमारे पास में. राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल. व्हाट इज अ राइट एंगल? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख लो, जो लार्जेस्ट एंगल होता है दैट इज द राइट एंगल. 90 डिग्री का एंगल होता है. व्हाट इज एक्यूट एंगल? 90 डिग्री से कम जो जितने भी एंगल्स होंगे वो सब एक्यूट एंगल में आते हैं. ऑब्ट्यूज एंगल, 90 डिग्री से ज्यादा जितने भी एंगल्स होंगे वो ऑब्ट्यूज एंगल में आते हैं. स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री का जो एंगल रहता है हमारे पास में दैट इज स्ट्रेट एंगल. देयर इज वन मोर कैटेगरी, रिफ्लेक्स एंगल. उसे भी मैं मेंशन कर देती हूँ. एक और प्रजाति होती है एंगल्स की गाइस, जिसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं. इसमें थीटा 180 डिग्री से ग्रेटर होता है. पार्डन. यस. नाउ देयर आर फोर कैटेगरीज ऑफ एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स. What are these? If we, let's say we have two angles, theta 1 and theta 2, and here also. If upon adding, इन दोनों को ऐड करके अगर 90 डिग्री आता है तो ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं. अगर इन दोनों को ऐड करके 180 डिग्री आता है तो ये दोनों सप्लीमेंट्री है. दीज आर सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, दीज आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर. एंड व्हाट इज द एंगल बाइसेक्टर गाइस? ये तो सबको ही पता होगा, बहुत ही बेसिक है ये तो. एंगल बाइसेक्टर एक ऐसी रे होती है जो किसी भी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, सच दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. नाउ we will study some angle relations. What are angle relations? In geometry, जब भी हम लाइंस की बात करेंगे, एंगल्स की बात करेंगे, सो वी विल गेट सम पैरेलल लाइंस एंड सम कॉमन लाइंस. उन लाइंस के अकॉर्डिंग एक ट्रांसवर्सल लाइन भी होती है. इससे पहले हम वो पढ़ लेते हैं. व्हाट इज अ ट्रांसवर्सल लाइन? कोई भी लाइन, अगर हमारे पास कोई भी दो लाइंस है, वो पैरेलल हो भी सकती हैं और वो पैरेलल नहीं भी हो सकती हैं. उनको काटने वाली जो तीसरी लाइन आती है, जो उन दोनों लाइंस को काटती है, दैट इज द ट्रांसवर्सल लाइन. नाउ number one category of angles are adjacent angles. एडजेसेंट एंगल्स की पहचान होती है कि इनकी वर्टेक्स सेम होगी, इनका कॉमन आर्म होती है, वन अनकॉमन आर्म होती है. अभी मैं डायग्राम बना के दिखाती हूँ. ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं. एंगल 1 and angle 2 are adjacent angles. Next, we have another angles
Angles by transversals. Angles made by transversal. गाइस अगर हमारे पास दो कोई भी रैंडम लाइंस हैं या लेट्स से दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, parallel to each other, and there is this transversal called L1. We have A and B as two parallel lines. So what are corresponding angles? This is angle 1, this is angle 2, and these angles are corresponding angles, correspondence to each other. What are alternate interior angle? This is angle 3. So angle 3 is equal to angle 2. This relation is alt. I will write it down. Angle 1 is equal to angle 2. This is corresponding angles. Angle 3 is equal to angle 2. These are alternate interior angles. Now, let's say this is angle 4. So, angle 4 and angle 2 are consecutive interior angle. इन दोनों का जो सम रहेगा ना वो 180 डिग्री होता है. एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ नेक्स्ट, अब हम यहाँ से थोड़ी सी प्रॉपर्टी शुरू करते हैं. फर्स्ट, if bisectors of a pair of alternate angles formed by a transversal with two given lines are parallel, prove that given lines are parallel. एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. if bisectors of a pair of angles, pair of alternate angles formed by a transversal are पैरेलल को ना मैं अगली बार से ऐसे बनाऊंगी, तो ये मेरा सिंबल है पैरेलल का. पैरेलल टू ईच अदर, proof given lines are parallel. इसका डायग्राम ऐसा है. लेट्स से एक लाइन है ए बी, ये दूसरी लाइन है सी डी. अब हमने ट्रांसवर्सल खींची यहां से ई एफ सच दैट इस एंगल का जो बाइसेक्टर है, एंगल 1, एंगल 2 और जो इस एंगल का बाइसेक्टर है एंगल 3, एंगल 4, इनको हम कुछ ओपी मान लेते हैं. एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, क्योंकि ये ओ एम और ओ एन बाइसेक्टर्स एंगल. सो गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. तो बहुत ही इजी है. इस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा इससे, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा. इस सिचुएशन में एंगल ए जी एच एंगल डी एच जी के इक्वल हो जाएगा, एंड हेंस ए बी सी डी के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए जी एच नहीं सॉरी
लेट मी करेक्ट इट, या इसको जी और एच मान, अंडू करते हैं। ए ओ पी बी पी ओ के इक्वल हो जाएगा, तो ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया ये तो। सो दिस वाज द बेसिक क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे ट्रायंगल्स की। अब एंगल्स खत्म हो गए, नाउ वी विल मूव ऑन टू जिसका सबको वेट था बहुत देर से, ट्रायंगल्स। व्हाट इज अ ट्रायंगल? Triangle is any plane figure bounded by three lines in a plane. Types of triangle. ट्रायंगल को मैं ऐसे डिनोट करूंगी, स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये है बाय साइड्स, बाय एंगल्स भी होगा अभी। व्हाट इज अ स्केलन ट्रायंगल? नो टू साइड्स आर इक्वल, इनकी कोई भी दो साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होती, कहने का मतलब है कि तीनों साइड्स का जो मेजरमेंट होता है वो डिफरेंट रहता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल रहती हैं, इक्विलेटरल में तीनों इक्वल रहती हैं। अब नीचे आ जाओ, अब हम करेंगे बाय एंगल। सबसे पहला एक्यूट, दूसरा राइट, तीसरा ऑब्ट्यूज। पूरा लिख देती हूँ मैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अभी हमने सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। हम्म, लेट्स से हमारे पास ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, जिसके अंदर ये एंगल लार्जेस्ट है, दिस एंगल इज लार्जेस्ट। सो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो लार्जेस्ट एंगल रहता है ना, वो बाकी दोनों एंगल्स से छोटा रहता है, बाकी दोनों एंगल्स की सम से, बाकी दोनों एंगल्स की सम से लार्जेस्ट एंगल छोटा रहे। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में कुछ अलग ही चीज होती है, इसके अंदर गाइस क्या होता है, जो एंगल बी रहेगा ना, जो लार्जेस्ट एंगल है, लार्जेस्ट, वो दोनों के सम के बराबर रहेगा, बाकी दोनों के सम के। और ऑब्ट्यूज एंगल को पहचानने की क्या, हमारे पास डिफरेंशिएट करने की क्या टेक्निक है, कि जो लार्जेस्ट एंगल रहता है, एंगल बी,
जरूरी नहीं है एंगल बी ही लार्जेस्ट हो, ये भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ये तो मैं समझा रही हूँ, तो मैंने एंगल बी लार्जेस्ट कर दिया। वो होता है ग्रेटर देन एंगल ए प्लस एंगल सी, बाकी दोनों एंगल के सम से बड़ा होता है। एक यहाँ पे प्रॉपर्टी आ जाती है राइट एंगल ट्राइंगल की। इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी विच इज 90 डिग्री, क्योंकि टोटल सम 180 होता है, एंगल भी 90 है, ए प्लस सी का जो सम होगा वो 90 हो जाएगा। जब इस केस में एंगल ए प्लस एंगल सी का रेशियो एंगल बी के इक्वल हो जाता है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इज टू एंगल बी इज 1:1, क्योंकि ये 90 डिग्री इज टू 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अब हम यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, लेट्स से वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी, सच दैट मैंने सी को एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पे हमारा आ गया y डिग्री। यहाँ से हमने a को एक्सटेंड कर दिया एंड वी गेट x डिग्री। एंड यहाँ अंदर में हमारे पास है b डिग्री, एंड ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है, एंड a एंड b आर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। सी पार्डन, x एंड y डिग्री आर एक्सटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इस केस में इसको आप याद कर लो, इस आइडेंटिटी को, इस प्रॉपर्टी को, कि a डिग्री प्लस b डिग्री इज इक्वल टू x डिग्री प्लस y डिग्री। इसको याद कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, लेट्स से लेट मी ड्रॉ दिस पैरेलल लाइन लाइन। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको मैं नाम दे देती हूँ ए बी सी डी। और इनके बीच में क्या हो रहा है, एक इस बीक लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है, बीक लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। इसको हम ओ पी और क्यू नेम दे देंगे। और हमारे पास ये ए डिग्री है, ये हमारे पास में बी डिग्री है। हमसे ना सी डिग्री पूछ लेंगे, तो सी डिग्री इज इक्वल टू ए डिग्री प्लस बी डिग्री। अब इसका प्रूफ देखो, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ हो, मैं दिखा देती हूँ। इस पॉइंट से एक यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से these angles will be equal and these angles will be equal, so c degree will be a degree plus b degree. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन के पैटर्न पे फ्रेम किया था।
ट्रांसवर्सल्स के ऊपर एक प्रॉपर्टी है हमारे पास। अगर 4 पैरेलल लाइंस है, अच्छी लाइंस बनाते हैं ना, थोड़ा सुंदर लगे देखने में। 2 मिनट। और हमारे पास 4 पैरेलल लाइंस हैं और उसके उनके ऊपर हमने ऐसे ट्रांसवर्सल डाल दी। 1 2। ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ये जो इंटरसेप्ट आएंगे ना, ए बी सी, इसको नेम दे देते हैं ई और एफ। इनका जो प्रपोर्शन में होंगे, दिस विल बी, दिस इज नोन एज इंटरसेप्ट proportionality. A is to B is to C is equal to D is to E is to F. इसको याद रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से क्या करेंगे, कोई भी 4 चीजें दे के 5वीं चीज पूछ लेंगे, तो एक भी पता है तो हम सारे निकाल सकते हैं इसमें। तो गाइस अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी इंटरसेप्ट के बेसिस पर ही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलती है, अगर मेरे पास में 3 पैरेलल लाइंस है, लेट मी ड्रॉ 3 पैरेलल लाइंस, नहीं तो फिर से पहले की तरह। 3 पैरेलल लाइंस हैं और ट्रांसवर्सल इस तरीके से ड्रॉ है इनके ऊपर कि आगे जाके मीट हो जाए और एक ट्रायंगल बना ले किसी ओ पॉइंट पे। तो इनका जो इंटरसेप्ट रहेगा बी और ये जो इंटरसेप्ट रहेगा एपी अपॉन पीसी जो रहेगा, जैसे हमने ऊपर पढ़ा इंटरसेप्ट प्रोपोर्शनैलिटी, वो बी क्यू अपॉन क्यू सी क्यू डी के इक्वल होगा। ये तो हो जाएगा हमारा इंटरसेप्ट प्रोपोर्शनैलिटी। मेन इक्वेशन यहाँ पे ये बनती है कि हमसे ना ये ए और बी देके, बी एम एम इज टू एन है, ए और बी देके पी क्यू की वैल्यू पूछ लेते हैं। पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। इसको याद कर लो, ये वैल्यू एज इट इज पूछते हैं। नॉट इवन इन क्लास 10 बोर्ड एग्जाम बट ऑल्सो इन गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये चीजें पूछी जाती हैं। लाइक देर आर अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक एस एस सी सी जी एल पीओ बैंक पीओ, उनमें ये एज इट इज आता है, तो इसको याद कर लो। नेक्स्ट, अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे थोड़ी सी ट्राइंगल इनइक्वालिटी। What is triangle inequality, by the way? If anyone knows, please write it down in the comment section. And I'm going to explain it further as well. What is triangle inequality? We are going to study triangle inequality. What is this? कंडीशंस होती है ट्राइंगल की साइड्स की मेजरमेंट के ऊपर। अब हम वो देखेंगे। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल, लेट मी ड्रॉ इट। Let's say this is a triangle A, B, C, and these are the sides A, B, and C. So according to triangle inequality, A plus B is always greater than C. This is the condition on which
one can construct a triangle B plus C is greater than A। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ही एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकता है हर साइड के लिए। अगर ट्रू नहीं होती है ये कंडीशन तो ट्रायंगल नहीं बन सकता। इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है, आपको कोई भी 1 3 5 या कोई भी देके देख लेंगे तो कोई भी साइड्स का रेशो, व्हाट आई एम सेइंग इज कोई भी साइड जैसे 1 3 5 कोई भी 3 नंबर दे देंगे और बोलेंगे कि क्या कंस्ट्रक्ट हो सकता है कोई ट्रायंगल, तो हम उसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी की ये जो तीन हमारे इक्वेशन है इनको चेक करेंगे उसके अंदर। जैसे 1 3 5 दे दिया तो इसमें डाल डाल के देखो ये ABC है, तो 4 पहली ही गलत हो गई नहीं, तो ट्रायंगल कैन नॉट बी मेड, नहीं बन सकता ट्रायंगल। तो ये कंडीशन है ट्रायंगल बनने का। और भी इसमें चीजें होती हैं। अब हम अब हम इसको प्रॉपरली पहले पढ़ते हैं ट्रायंगल इनको। इससे क्या कंक्लूजन आता है? इससे ये कंक्लूजन आता है कि जो बी होता है वो हमेशा बाकी दोनों के जो भी एक हमारे पास साइड होती है वो बाकी दोनों के डिफरेंस से बड़ी होती है। और अगर ये कंडीशन प्रूफ हो रही है तो ही ट्रायंगल बन सकता है। स्टार बना के लिख लो इसको कॉपी में। बी विल बी ग्रेटर देन सी माइनस ए का मॉड, क्योंकि सी माइनस ए नेगेटिव भी आ सकता है तो हम नेगेटिव तो साइड होती नहीं है तो हम हमेशा पॉजिटिव में लेंगे उसको। तो अगर हमसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं, हमसे रेंज पूछते हैं ऑफ साइड बी, हम क्या लिखेंगे? भाई साइड बी की जो रेंज है वो रेंज है सी माइनस ए का मॉड से लेकर के सी प्लस ए तक की वैल्यू, इससे ज्यादा नहीं जाती है। और ये भी इंक्लूडेड नहीं है, ये दोनों भी इंक्लूडेड नहीं है बी की वैल्यू में। अब इसका क्वेश्चन करते हैं। साइड्स दी हुई है 10 24 और एक्स, और आपसे पूछ लिया एक्स का रेंज। सो एक्स का रेंज क्या होगा? 24 - 10, 24 + 10, इट विल बी 14। 15 से लेकर के बेसिकली 15 इंक्लूडेड रहेगा 33 तक। तो एक्स का रेंज में मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो 15 आएगी और जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 33 आएगी। ओके, डन। नाउ नेक्स्ट। एक इसमें आइडेंटिटी लाइक एक प्रॉपर्टी आ जाती है इसके अंदर कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है उसमें ये एंगल लार्जेस्ट है और सी के अपोजिट है वो एंगल एंड सी इज द लार्जेस्ट, जौन सा भी एंगल लार्जेस्ट रहेगा इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जो लार्जेस्ट साइड है मैं लिख भी देती हूँ, इट इज इक्वल टू, ओ सॉरी नॉट इक्वल टू, इट इज लेस देन A² + B²। ये आया वहीं से है जो आइडेंटिटी हमने पहले पढ़ी थी, उसी से आया है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो सी जो लार्जेस्ट साइड है और बाकी ए और बी है हमारे पास में,
आज बहुत मिस्टेक्स हो रही हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आ जाएगा गाइस। ये तो पाइथागोरस थ्योरम ही है हमारी। नेक्स्ट, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर ये लार्जेस्ट साइड है और बाकी दोनों अपना नॉर्मल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल, इस केस में सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से बड़ी है। ये कंडीशंस हैं, इनको याद कर लो, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, these are the conditions learned. Next, we will study about other concepts. अब हम ट्राइंगल में प्रॉपरली घुस चुके हैं गाइस। हमने ट्राइंगल की इनइक्वालिटी कवर कर लिया, हमने ट्राइंगल की कंडीशंस कवर कर ली हैं। अब हम कवर करेंगे ट्राइंगल का इंटरवल, इंटरसेप्ट्स और सब कुछ, ट्रांसवर्सल्स कवर कर लिया है। अब हम ट्राइंगल के एंगल्स के ऊपर जो प्रॉपर्टीज रहती हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट। स्टार बना के लिखो। और हमारे पास एक ट्राइंगल है। ए बी सी such that इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जो रहेगा हमारा, ये तो है एक्सटीरियर एंगल, ये है इंटीरियर एंगल। इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर मीट कर रहा है किसी डी पॉइंट पर। तो हमसे पूछ लेते हैं एंगल बी डी सी बताओ। तो इस केस में इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर मीट एट पॉइंट डी। तो एंगल बी डी सी का जो वैल्यू होगा, इट विल बी हाफ ऑफ एंगल बी ए सी। ओके, नाउ नेक्स्ट, स्ट्रगल नहीं करना बिल्कुल भी प्रॉपर्टीज के अंदर। इनको जितना हो सके अपने दिमाग में रिमेम्बर करके रखो। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। काफी क्वेश्चंस इसमें आर डी शर्मा एनसीईआरटी में आपको इससे रिलेटेड मिल भी जाएंगे। अब हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी और सी। एक हमने इसके ऑल्टीट्यूड डाली डी, और एक हमारा एंगल बाइसेक्टर है ई, ए ई 1 2, सच दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, ये जो हमारे पास में आता है ना ऑल्टीट्यूड, ये लार्जेस्ट एंगल के पास में आता है। ऑल्टीट्यूड इन ए ट्राइंगल ऑलवेज फॉल्स ऑन द साइड ऑफ लार्जर एंगल। तो हमें मेन प्रॉपर्टी हमारी ये है कि ए ई एंगल बाइसेक्टर है, ए डी ऑल्टीट्यूड है, एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी माइनस एंगल सी अपॉन 2। ओहो,
डन। आप उतार लो इसको। और इधर भी मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया था, तो आप इसको भी उतार लो। और ये अब करते हैं आगे। नेक्स्ट। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मान लो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है गाइस, ABCD। और मैं इन सबके एंगल बाइसेक्टर्स, लाइक दिस वन, दिस एंड दिस। एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर यहाँ जा रहा है, एंगल बी का एंगल सी का यहाँ जा रहा है, एंगल बी का ऐसे जा रहा है, एंगल डी का इस तरीके से। लेट मी एक्सटेंड इट। तो ये जो यहाँ पे बनेगा ना, PQR और S, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एंगल APB इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D अपॉन टू, एंगल CQD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B अपॉन टू, एंड PQRS quadrilateral becomes, और ये सब एंगल बाइसेक्टर्स हैं, a cyclic quadrilateral as sum of opposite angles 180 डिग्री। ओके, इसको उतार लो। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नाउ नेक्स्ट। if x plus y is equal to a and x minus y is equal to b, then x is equal to a plus b upon 2 and y is equal to a minus b upon 2। सिंपल लीनियर इक्वेशन से ही निकाला हुआ है गाइस। सिंपल लीनियर इक्वेशन से हमने ये दो रिजल्ट्स निकाले हैं। तो डन। अब नेक्स्ट करते हैं। एंगल बाइसेक्टर्स जहां मीट करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में। एंगल बाइसेक्टर्स जहां मीट करते हैं उस पॉइंट को इन सेंटर बोलते हैं और आई से डिनोट करते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर वी ड्रॉ ट्रायंगल, ऐसे ही बना लेते हैं। किसी भी ट्रायंगल के अंदर लेट्स से ABC
और ये दो एंगल्स हैं, इनका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एंगल सी का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ओ पॉइंट पे मीट करता है अगर, ऐसे डिनोट करते हैं बाइसेक्टर्स को। तो यहाँ ये आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी बोलो, ये प्रॉपर्टी आती है कि एंगल बी और सी जो रहेगा दैट विल बी 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार बना के इसको लिख लो, प्रॉपर्टी है ये हर जगह काम आती है, हर एग्जाम में और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट, एक कॉन्सेप्ट है, अगर मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए बी is equal to AC, we have an isosceles triangle ABC. तो ट्राइंगल ADB जो रहेगा, अभी कैसे बन रहा है ये, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी दोनों। कैसे, अभी बताती हूँ। ए और ये ए, ट्राइंगल ADB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। दो साइड और एक एंगल इक्वल हो जाएगा इसमें, क्योंकि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो ये रहता है आपका परपेंडिकुलर, वो लाइन बाइसेक्टर भी होता है। तो SAS से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थोड़ा सा ट्रिगो प्लस ज्योमेट्री आ जाएगी, हाँ मैं लिख देती हूँ। थोड़ी सी ट्रिगो प्लस ज्योमेट्री इधर हम कंसीडर करेंगे। साइन रूल, व्हाट इज साइन रूल, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ABC, such that we have three angles, angle A, angle B and angle C. तो अगर हमारे पास तीन साइड्स है इसकी ABC, सो A अपॉन साइन A, B अपॉन इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। ये हमारे पास आ जाता है, इसको नोट डाउन कर। और इससे A is to B is to C is equal to sin A is to sin B is to sin C. Now we will study one concept and then we will close the video, close this part 1. We will study the rest in part 2. In part 2, we will be having cosine rule and angle bisector theorem and Stewart's theorem and a lot more of triangles and its properties. Then we will move forward for congruency, guys, congruency and similarity. So let's move for the last property of today's, that is standard. It's a concept.
triangle. What does it say? It says that let's say we have a right angle triangle. हमारे पास एक right angle triangle है ABC, right angled at B, and if it is a kind of a BC and AB is equal, then the angles will be 45 degree and 45 degree. In this case, A is side ratios is to B is to C will always be 1 is to 1 is to root 2. It will always be. No matter, ऐसा जरूरी नहीं है कि यूनिट ही हो, यूनिटरी हो, कोई भी यहाँ वैल्यू हो सकती है अगर ये दोनों बराबर है. यहाँ 5 हो सकता है, यहाँ 8 हो सकता है, कुछ भी. रूट डेसिमल में भी हो सकता है, तो भी इनका जो रेशियो आएगा वो 1:1:√2 आएगा. और दूसरी चीज क्या है यहाँ पे? लेट्स से वी हैव अ right angle triangle, right angled at B, such that this is B, this is A, and this is C. So A is to B, this is 60 degree, and let's say this is 30 degree. इसी प्रपोर्शन में होना चाहिए गाइस. ऐसा नहीं कि अगर 30 डिग्री ऊपर कर दिया तो भी रेशो सेम रहेगा, फिर रेशो उल्टा हो जाएगा. तो A is to B is to C जो रहेगा, that will be equal to sin 30 is to sin 60 is to sin 90. That is equal to 1 is to √3 is to √2. दोबारा लिख देती हूँ. A is to B is to C ये वाला इज इक्वल टू 1 is to √3 is to √2. ये सबके लिए पॉसिबल है, सबके लिए ट्रू है. ये कोई भी वैल्यू हो, अगर कंडीशन इस तरीके की है कि राइट एंगल ट्रायंगल और एक 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री है, ए बी सी का रेशो 1:3:√2 आ जाएगा, प्रोवाइडेड कि 60 डिग्री और 30 डिग्री इसी प्रपोर्शन में, लाइक इसी तरीके से बने. ऐसा नहीं कि यहाँ 60 है यहाँ 30, फिर √2:√3 आएगा. ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा गाइज. लाइक करना, कमेंट करना, प्लीज शेयर करना, ताकि ये एजुकेशन सबके पास जा सके. और हम इसका पार्ट 1 आज हमने कवर किया है, पार्ट 2 हम इसका आगे कवर करेंगे. पार्ट 2 हम इसका आगे कवर करेंगे. तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. बाय.